Hey guys, hi to all. We had started chapter 8 Memories of Childhood. Part 1 we have already completed, and now we are moving further on second part, which is like We Too Are Human Beings, authored by Bama. So here the narrator is Bama, and she is saying, we will be beginning from here. When I was studying in the third class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability, but I had already seen, felt, experienced, and been humiliated by what is it. So यहाँ पे वो ये बता रही है कि लोग जो थे वो ओपनली बात नहीं करते थे अनटचेबिलिटी के बारे में जब वो थर्ड क्लास में पढ़ती थी, लेकिन उसने इस चीज़ को देखा था, फील किया था, एक्सपीरियंस किया था, बिकॉज़ उसकी बहुत बार इंसल्ट हो चुकी थी. So the next is, I was walking home from school one day, an old bag hanging from my shoulder. It was actually possible to walk the distance in 10 minutes, but usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. At the very least का मतलब होता है minimum. So here she is telling us that स्कूल और घर के बीच में 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन उस 10 मिनट को पूरा करने के लिए उसको पॉसिबली 30 मिनट्स लग जाते थे. Then it would take me from half an hour to an hour to dawdle along watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets, the shop and the bazaar. Dawdle means to walk slowly, to move aimlessly. मतलब जब हमें पता ना हो हमने जाना कहाँ पे है और हम ऐसे ही इधर उधर वेंडरिंग करते रहें. Novelties means new things or unique things. Oddities means strange things, peculiar things. So here Vama is saying that when she used to take between half an hour to 1 hour to slowly walk to home, she tried to watch all the funny things and games on the street. So with it, interesting things भी होती थी, कुछ पिक्यूलियर भी होती थी. कहाँ पे? स्ट्रीट में जो शॉप्स हैं, बाज़ार हैं, उनके बीच में. नेक्स्ट इज़ द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो होता क्या था बाज़ार में? मंकी जंपिंग लाइक उनके मास्टर्स जो हैं उनसे कैसे एक्ट कराते हैं, दे आर द परफॉर्मिंग मंकी परफॉर्मिंग. स्नेक चार्मर जो हैं वो अपने बॉक्सेस में स्नेक्स को रखते हैं और टाइम टू टाइम वो उनको डिस्प्ले करते हैं लोगों के सामने. द साइकिलिस्ट हु हैड not got off his bike for 3 days and who kept pedaling as hard as he could from break of the day, the rupee notes that were pinned on to his shirt to spur him on. Here we got break of the day means start of the day. Spur on means to encourage someone or to motivate someone. तो यहाँ पे वो बोल रही है कि वो साइकिलिस्ट जो कंटिन्यूसली साइकिल को चला रहा है 3 दिन से, और वो तब से चला रहा है जब से डे जो है वो स्टार्ट हुआ है. और रुपी नोट्स जो हैं वो उसकी शर्ट पे पिन्ड हैं, मतलब पिन्ड अप हैं. जो उसको देखने वाले लोग हैं उसकी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए वो उसके ऊपर, उसकी शर्ट के ऊपर नोट जो हैं उनको पिन अप कर रहे हैं. द स्पिनिंग व्हील, the Mariatta temple, the huge bell hanging there, the pongal offerings being cooked in front of the temple, the dried fish stall by the statue of Gandhi. Here she is telling us that
ऑफरिंग मीन्स प्रसाद, किसी भी टेम्पल के बाहर कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए मंदिर में ऑफरिंग. दैट here the word offering is referring about the prasad or the gift which we take and which we want to give or to offer to God. Stall means small shops. पोंगल मीन अ फेस्टिवल, आपने सुना होगा इसके बारे में. सो यहाँ पे वो बता रही है कि जो मारियता टेम्पल है उस पे जो घंटी लगी हुई है और जो प्रसाद मंदिर के बाहर जिसको कुक किया जाता है, पकाया जाता है, ड्राई फिश की शॉप है यहाँ पे. कहाँ पे है ये? नियर द स्टैचू ऑफ गांधी. फिर उसके बाद वो यहाँ पे हमें बताती है the stall selling fried snacks and all the other shops next to each other. The street light away demonstrating how it could change from blue to violet. तो कह रही है कि जो शॉप है जहाँ पे स्वीट्स बेची जाती हैं, कुछ शॉप्स है यहाँ पे फ्राइड स्नैक्स पड़े हैं, कुछ शॉप एडजेसेंट है, मतलब उनके बगल में ही है. और स्ट्रीट लाइट जो है उसके कलर जो है वो चेंज होते हैं फ्रॉम ब्लू टू वायलेट. उसके बाद नेक्स्ट वो हमें बताती है द नारीकुरवन hunter gypsy with his wild lemur in cages selling needles, clay beads and instrument for cleaning out the ears. नारीकुरवन का मतलब है एक, ये तमिलनाडु की एक कम्युनिटी को बोला जाता है. और हंटर जिप्सी जो हैं ये नोमैडिक हंटर्स होते हैं और जो हंटर्स लिए होते हैं और वो गाड़ी पे मूव करते हैं, जिप्सी में मूव करते हैं, उनको हंटर जिप्सी बोली जाती है. लेमुर एक तरह का मंकी होता है, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ मंकी. सो हंटर जिप्सी जो है वो नारीकुरवन कम्युनिटी जो है वो उसको यूज़ करती है एक्चुअली वाइल्ड लेमुर जो है उनको केजेस में रखना, नीडल्स को बेचना, क्ले बीड्स को बेचना और इंस्ट्रूमेंट जो है उनको कानों को साफ़ करने के लिए उन सबको वो सेल करते हैं. नेक्स्ट वो बोल रही है Oh, I could go on and on. Each thing would pull me to a standstill and not allow me to go any further. अब वो कह रही है कि हर चीज़ जो है वो मुझे इतना टेम्प्ट करती है, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है. जो भी मेरे रास्ते में चीज़ें आती हैं हर चीज़ को देख के मैं अट्रैक्टेड फील करती हूँ और मेरा मन करता है कि मैं वहीं पे स्टैंड स्टिल हो जाऊँ, मीन्स मोशन लेस हो जाऊँ और वहाँ से ना जाऊँ. सो this is the explanation of this paragraph. Now here we are on the first paragraph, which is at time people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. At times का मतलब होता है कभी कभार, sometimes. Put up का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, इंस्टॉल करना. harangue वर्ड यहाँ पे न्यू है, इसका मतलब होता है लेंदी लेक्चर्स देना, मतलब भाषण झाड़ना. पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे आके अपने अपने भाषण देती हैं, ज़ोर ज़ोर से लोगों को बोर करती हैं, दैट इज़ हैरैंग. तो यहाँ पे वो बोलती है कि कभी कभी लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी के वो स्टेज बना के हम लोगों को ट्रबल दिया करते थे क्योंकि उनके लेक्चर्स बहुत लंबे होते थे और वो अपने माइक्स में ज़ोर ज़ोर से बोल के हम लोगों को बोर किया करते थे. देन there might be a street play or a puppet show or a no magic, no miracle stunt performance. All these would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. No magic, no miracle means something real. Like stunt performance हो रही है तो वो real है. Time to time means not regularly, occasionally we can say. अब यहाँ पे वो कहती है कि कभी कभार जो है वो स्ट्रीट प्लेस होते थे, पपेट शो होते थे, कभी कभी जो है वो रियल स्टंट होते थे और ये रेगुलरली नहीं होते थे लेकिन सम टाइम दे वुड ऑकर. और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि
कुछ ना कुछ आए दिन जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए चलता ही रहता था जब मैं अपने घर को जाया करती थी. एंड नाउ वी आर हेयर ऑन दिस पैराग्राफ. फाइन. So here the things are, the speech is like, even otherwise there were the coffee clubs in the bazaar, the way each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its content into a tumbler held in his other hand. अब यहाँ पे वो बोल रही है कि किस तरह से जो वेटर हैं वो कॉफ़ी शॉप्स पे कॉफ़ी को ठंडा कैसे करते थे. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी और बड़े पिक्यूलियर वे में, स्ट्रेंज वे में वो कॉफ़ी को ठंडा किया करते थे. एक गिलास को काफ़ी हाई इन हैंड पकड़ के दूसरे गिलास को बिल्कुल लो करके और ऊपर से नीचे की तरफ कॉफ़ी जो है वो दूसरे गिलास में डाली जाती थी सो दैट वो ठंडी हो जाए. और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप चॉपिंग अप ऑनियन, देयर आइज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट. चॉप का पता है आपको सबको. चॉप मतलब होता है काटना स्मॉल पीसेस में. वुड नॉट स्मार्ट मीन्स it would cause pain to those people who are chopping the onion in front of their shops. So यहाँ पे next है, or the almond tree growing there and its fruits which was occasionally blown down. blown down का मतलब होता है गिर जाना, fall down or fell down by the wind, हवा की वजह से. all these sights taken together would tether my legs and stop me from going home. साइट का मतलब होता है सीनरी, सीन्स. टेथर्ड का मतलब होता है फिक्स हो जाना, रेस्ट्रिक्ट करना. तो यहाँ पे वो बोलती है कि कुछ यहाँ पे आलमंड ट्रीज़ हैं उसके रास्ते में और कभी कभार हवा की वजह से उसके फ्रूट्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं. और ये जो सीन है ये मुझे बांध लेता है या फिर मुझे फ़िक्स कर देता है, मेरी लेग्स को स्टॉप कर देता है और मुझे घर को जाने से रोकता है. Here we are on the second last paragraph here on this page. And then according to the season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup, palm fruit, guavas and jackfruit. Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, payasam, halwa, boiled tamarind, seeds and iced lollies. Here we got so many things. I think you might not have heard about palm shoots. palm shoots होती है ताड़ के अंकुर. ताड़ का एक पेड़ होता है उसके ऊपर लगे हुए अंकुर जो है, स्प्राउट जो है, उनको शूट्स बोला जाता है. ग्राम का आपको पता है चने होते हैं. पाम सिरप इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ सिरप विच इज़ मेड फ्रॉम पाम लीव्स आई थिंक. पाम फ्रूट विच इज़ bear by the palm tree. देन जैक फ्रूट इज़ कटहल. और उसके बाद हमें न्यू वर्ड मिलता है सेवरी. सेवरी मीन्स डिलीशियस, समथिंग टेस्टी. पयस्सम इज़ अ सॉर्ट ऑफ पुडिंग. साउथ इंडिया में या कन्नड़ भाषा में इसको खीर को पयस्सम बोला जाता है. हलवा आप सब ने खाया होगा. बॉयल टैमरिंड मतलब कुछ खट्टा बनाने के लिए. आइस लॉली मीन्स लॉलीपॉप. फिर यहाँ पे वो कहती है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं. और हर दिन बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वीट्स को बेचते हैं, डिलीशियस फ्राइड स्नैक्स को बेचते हैं और अदर आइटम्स को भी बेचते हैं जिनके बारे में हमें अभी अभी पता चला है, हमने अभी अभी पढ़ा है. गेजिंग ऑल एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर. अब यहाँ पे वो बता रही है कि इन सब आइटम्स को, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में पहुँच जाती हूँ और मेरा स्कूल जो है बैग वो मेरे शोल्डर पे ही लटका हुआ है, हंग है. एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. थ्रेशिंग का मतलब होता है
प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन, स्ट्रॉ जिसमें अलग हो जाता है भूसा और ग्रेन्स जिसमें अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को थ्रैशिंग बोला जाता है। सैकिंग, आपको पता है जूट बैग्स जो होते हैं उनको हम सैक बोलते हैं, रफ टाइप ऑफ क्लॉथ होता है ये। लेज जो है वो होता है एक नैरो स्टोन या फिर रॉक्स जो हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स या स्टोन, उनके ऊपर एक फ्लैट सरफेस जिसके ऊपर बैठा जा सके, उसको हम बोलते हैं लेज। तो कहती है कि स्ट्रीट के दूसरे एंड पे अगर हम बात करें तो थ्रैशिंग फ्लोर जो है उसको बनाया गया था और एक छोटा सा कपड़ा जो है लाइक सैक जो है, जूट बैग जो है, वो स्टोन के ऊपर रखा था और उसके ऊपर कौन बैठा था? लैंडलॉर्ड बैठा था। The last line is, our people were hard at work driving cattle in the pair round and round to tread out the grain from the straw. अब यहाँ पे बोलिए कि हमारी जो कम्युनिटी के लोग थे वो बड़े हार्ड वर्क थे, वो सर्कल में राउंड एंड राउंड में कैटल्स को ड्राइव करते थे, पशुओं को गोल गोल घुमाते थे, सो दैट कि जो स्ट्रॉ है वो अलग हो जाए और जो क्रॉप है वो अलग हो जाए। और इस प्रोसेस को इसलिए किया जाता था ताकि ग्रेन्स जो हैं वो स्ट्रॉ से अलग करके उनको यूज़ किया जा सके फर्दर। नेक्स्ट इज द एनिमल वर मजल्ड so that they wouldn't help themselves to straw. I stood for a while there watching the fun. मज़ल होता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी एनिमल का मुंह जो है उसको नेट से बंद कर दिया जाता है ताकि वो कुछ बोल ना पाए या फिर वो कुछ खा ना पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उस मोमेंट पे। फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए कुछ पल के लिए। माउथ ऑफ एनिमल जो है उनको कवर किया जाता था ताकि वो कुछ खा ना पाए, लाइक स्ट्रॉ वहाँ पे है, भूसा वहाँ पे है तो वो उसको खा सकते हैं, इसलिए उनको मज़ल किया जाता है। और कहती है कि मैं वहाँ पे कुछ टाइम के लिए खड़ी रही ताकि मैं ये सब प्रोसेसिंग जो है, जो भी कुछ हो रहा है वो देख सकूँ। देन नेक्स्ट उसको क्या दिखता है? जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाज़ार, द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप। एक्चुअली यहाँ पे वो बताती है कि इमिडिएटली इस सीन के बाद, लैंडलॉर्ड के सीन के बाद, वो एक एल्डर पर्सन देखती है उनकी अपनी कम्युनिटी का, और उसको देखने के बाद वो डबल अप करती है। डबल अप का मतलब होता है हंसना। एक्चुअली वो उसकी पेसिंग भी काफ़ी स्लो है तो मे बी वो ज़्यादा जल्दी से जानना चाहती है कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसके बाद वो जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो एल्डरली पर्सन जो है वो चल रहा है। Then she's saying, I want to shriek with laughter at the sight of such a big man carrying a small piece in that fashion. I guess there was something like bedai or green banana bhaji in the packet because the wrapping paper was stained with oil. अब यहाँ पे आपने पढ़ा श्रीक। श्रीक का मतलब होता है शाउट, चिल्लाना, ज़ोर से बोलना। श्रीक विद लाफ्टर मीन्स लाफ आउट लाउडली, बहुत ज़ोर से हंसना। बढ़ाई जो है एक तरह का जो सब्जी है, वेजिटेबल है, उसको बोला जाता है। भाजी जो है वो कुक्ड वेजिटेबल को बोला जाता है। स्टेन जो है वो स्पॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है या फिर दाग धब्बों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब कहती है कि मैं उस पर्सन को देखती हूँ कि इतना बड़ा आदमी, उसने छोटा सा पैकेट जो है वो उठा के रखा हुआ है, तो मैं हंसना चाहती थी। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मेरे को ये गेस हुआ कि उसने उस पैकेट में बढ़ाई, जिसको वो कहती है कि ग्रीन बनाना की भाजी जो है वो बनाई होगी, तो वो बीच में रखी है उस पैकेट में। और उसके साथ वो ये भी बोल रही है कि जो पेपर है जिसको रैप करने के लिए यूज़ किया है उसके ऊपर ऑयल स्टेन्स हैं, मतलब तेल के दाग हैं, तो इसलिए उसको पता चल रहा है कि समथिंग इज़ फ्राइड इनसाइड इन द पैकेट। He came along holding that packet by its string without touching it. I stood there thinking to myself, if he hold it like that, won't the package come undone and the badais fall out? Now she is saying string means
थ्रेड करना या फिर पतली सी किसी रस्सी के साथ बांध देना ताकि जो पैकेट है वो उसको टच ना करे। और अंडन का मतलब है पैकेट अगर ओपन हुआ और वो गिर जाए तो उसके अंदर का जो सामान है, बड़ाई या भाजी, वो सब गिर जाएगी। अंडन मीन्स फॉल डाउन। सो अभी वो कह रही है कि जिस स्ट्रिंग के साथ, जिस रस्सी के साथ या धागे के साथ उस पेपर को रैप किया है और जो पर्सन उसको होल्ड कर रहा है और चल भी रहा है साथ में ताकि वो उस पैकेट को टच ना कर सके, और उसके बाद अगर ये पैकेट उसके हाथ से छूट गया या फिर गिर गया तो सारी की सारी बड़ाई जो है वो गिर जाएगी। नाउ द नेक्स्ट लाइन इज़, actually next paragraph is, the elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet toward him. Cupping the hand that held the string with his other hand, the landlord opened the parcel and began to eat the badayas. अब क्या होता है, जो एल्डरली पर्सन है, जो एल्डर मैन है, वो क्या करता है, लैंडलॉर्ड के पास जाता है, थोड़ा सा वहाँ पे जाके झुकता है, जस्ट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट वी कैन से, और वो पैकेट जो है उसको एक्सटेंड करता है टुवर्ड द लैंडलॉर्ड। वाइल डूइंग सो ही हेल्ड द स्ट्रिंग विद बोथ हैंड्स, उस धागे को या उस रस्सी को उसने दोनों हाथों से पकड़ा है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट, और उसको वो खाना जो है स्टार्ट हो जाता है, जो भी उसके बीच में कंटेंट है या मटेरियल है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, एट लास्ट आई वेंट होम, माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। I told him the story in all its comic details. अब कहती है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद मैं घर पहुंच जाती हूँ और अपने एल्डर ब्रदर को ये सब चीज़ें जो है बड़े कॉमिक वे में नरेट करके सुनाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हुई। अब उसका भाई जो है वो उसको क्या बोलता है, I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that, making such a game out of carrying the parcel, but Anna was not amused. अब उसको ज़्यादा हंसी आ रही है, लेकिन अम्यूज़ का मतलब होता है हैप्पी। कहती है कि जब मैं अपने भाई को ये स्टोरी नरेट करके सुना रही थी, उन सीन्स के बारे में सुना रही थी कि कैसे जो एक बिग मैन है, एल्डर पर्सन है, उसने एक छोटा सा पार्सल पकड़ा है बड़े फ़नी मैनर में, लेकिन अन्ना जो है ही वॉज़ नॉट हैप्पी टू लिसन टू माई नरेशन। जो भी उसने बताया उसको सुन के वो कुछ भी उसको हंसी नहीं आई। और आगे बोलती है कि अन्ना टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बींग फनी व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट। ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस। अब उसका भाई उसको ये समझाता है कि इसमें कोई भी एक्ट जो था वो फ़नी नहीं था, किस तरह से उसने पैकेट पकड़ा, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं उनका ये मानना है कि वो लोग जो हैं वो अपर कास्ट से हैं और इसीलिए वो हमें टच नहीं करेंगे, बिकॉज़ अगर हमें वो टच करेंगे तो क्या होगा, इफ़ दे डिड दे वुड बी पॉल्यूटेड, दैट्स वाई वी हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। When I heard this, I didn't want to laugh anymore, and I felt terribly sad. अब कहती है कि ये सब थॉट सुनने के बाद कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो हमें टच करेंगे तो वो डर्टी हो जाएंगे, वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, इस रीज़न से जो मैन था उसने अपने पैकेट को स्ट्रिंग से होल्ड किया था, बिकॉज़ ही वॉज़ नॉट अलाउड टू टच द पैकेज। सो ये सब सुनने के बाद कहती कि मेरा बिल्कुल भी हंसने का मन नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी। नेक्स्ट वो हमें बता रही है, हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स इवन दो द वड़ाई हैड बीन wrapped first in a banana leaf and then parceled in a paper. Disgusting means offensive, something objectionable, something detesting. So यहाँ पे वो बोलती है कि how could anyone think that it was
offensive if any of us touched that packet. बढ़ई जो थी वो पहले किस में रैप थी? बनाना लीफ में. And then it was wrapped in a paper. How our hand can make it dirty? तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि हमारे हाथों से कैसे कोई चीज़ गंदी हो सकती है. I felt so provoked and angry that I wanted to touch those wretched bedies myself straightway. Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. Provoked mean agitated, upset. Wretched mean dirty, miserable. Straightway means right now. तो अभी उसको क्या था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, अपसेट थी और वो चाहती थी कि वो बडाइज जो हैं वो अभी के अभी उनको टच करे. और साथ में ये सोचती है कि वाई डू वी नीड टू ब्रिंग एंड कैरी थिंग फॉर दो सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल. हमें उन लोगों के लिए क्यों काम करना पड़ता है जिनको अपर कास्ट पीपल बोला जाता है. सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स goes meekly to the shop to fetch snacks and hand them over reverently, bowing and shrinking, to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. अब वो बोलती है यहाँ पे meekly का मतलब होता है without protest, submissively, या फिर आगे reverently वर्ड पढ़ा. reverently होता है with great respect. shrinking का मतलब fearing. stuffs into mouth means पुट्स इनटू माउथ, खाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो नरेटर यहाँ पे हमें ये बता रही है कि एल्डरली पर्सन जो है हमारे कम्युनिटी का वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है और वो जाता है सबमिसिवली हर शॉप पे ताकि वो स्नैक्स को ला सके. ही गिव्स दिस लैंड लॉर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड फियर. लैंडलॉर्ड को वो रिस्पेक्ट पे करता है और उनसे डरता भी है, उनके आगे झुकता भी है और वापस भी आ जाता है. दिस इज़ डन फॉर अ पर्सन. ये उस पर्सन के लिए किया जाता है हु ओनली सिट्स देयर और उसका ही दिया हुआ सामान जो है वो लैंडलॉर्ड जो है वो खा रहा है. सो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर मूविंग नाउ. द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी. हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ. इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है एंगर्ड. तो नरेटर यहाँ पे वामा हमें ये बताती है कि ये जो थॉट है इस सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ कि ये सारे पर्सन्स जो हैं ये अपने आप को हाई बताते हैं. बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर. डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग. वी टू आर ह्यूमन बींग्स. स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर का मतलब होता है कुछ पैसे कमाना. बिकॉज़ उनके पास ज़्यादा पैसे हैं इसका मतलब ये है कि वो इंसानियत भूल चुके हैं, उनके बीच में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है. फिर आगे वो बोलती है कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे बीच में भी फीलिंग्स हैं, हम भी इमोशनल हैं. आर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज. एरेंड्स का मतलब होता है छोटे मोटे काम, छोटा काम या फिर छोटी स्मॉल जॉब्स वी कैन से. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, take home our wages and leave it at that. wages का मतलब हो गया सैलरी. यहाँ पे नरेटर हमें ये बोलती है कि जो पीपल हैं, लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, वो क्या करते हैं इन बड़े लोगों के लिए काम करते हैं और काम करने के बाद जो उनको सैलरी अर्न होती है उसको लेके वो अपने घरों में आते हैं. हमें इसके आगे कुछ भी नहीं करना चाहिए इन लोगों के लिए. ये बात बोलती है. माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़. ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स. अब वो अपने भाई का रेफरेंस बताती है कि मेरा जो भाई है वो स्टडी कहाँ पे स्टडी कर रहा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो घर में आया हुआ है बिकॉज देयर आर हॉलीडेज़. तो वो क्या करता है अक्सर वो लाइब्रेरी में जाता है जो हमारी नेबरिंग विलेज की लाइब्रेरी है वहाँ पे, ताकि वो वहाँ जाके कुछ बुक्स ले सके. देन हमने आगे पढ़ना है. He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank. One of the landlord's men came up behind him. He thought my Anna looked unfamiliar, and so he asked, "Who are you, Appa? What's your name?"
अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि एक दिन जो है उसका भाई जो है वो वापस आ रहा होता है, वो इरिगेशन टैंक के पास पहुँचा होता है। यहाँ पे जो बैंक है उसका मतलब है एच या फिर एम्बैंकमेंट। फैमिलियर होता है नाउन और अनफैमिलियर मीन्स अननाउन। तो जब वो वापस आ रहा होता है तो लैंडलॉर्ड के कुछ पर्सन्स जो हैं वो उसको पूछते हैं कि वो उसके साथ अनफैमिलियर था या फिर मतलब वो उनको नहीं जानते थे। सो उनके बीच में एक जो है वो मेरे भाई को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड थाम्बी, on which street do you live? The point of this was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. तो थाम्बी का मतलब होता है भाई। साउथ इंडिया में मोस्टली थाम्बी जब वर्ड बोला जाता है तो उसका मतलब होता है ब्रदर। तो एक उसके बीच में लैंडलॉर्ड का जो असिस्टेंट मान लो या फिर उसके रखे हुए सर्वेंट मान लो, अन्ना को पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, ताकि वो नाम पूछेगा, रहते कहाँ पे हो, गली पूछेगा तो उसको हमारी कास्ट का भी पता चल जाएगा। अन्ना टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स। Here we on the last paragraph here. Anna told me all these things and he added, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity or respect. We are stripped of all that. Stripped of का मतलब होता है deprived of, taken away, वंचित रह जाना। तो अन्ना जो है नरेट करता है उसकी कॉन्वर्सेशन और मुझे ये बताता है कि हम इस कॉस्ट में या हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, सो इसीलिए हमें ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट जो है हम इन चीज़ों से वंचित हैं। ये सब चीज़ें जो है ये हमसे ली जा चुकी हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन। एक इनडिग्निटी का मतलब होता है इंसल्ट, ह्यूमिलेशन। थ्रो अवे का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमूव करना, छुटकारा पाना। तो कहती है कि मेरा भाई जो है वो मुझे ये बोलता है कि अगर इन चीज़ों को तुमने रिमूव करना है अपने लाइफ में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ स्टडी केयरफुली एंड लर्न एज मच एज यू कैन। Next is, if you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you. Work hard and learn. और आगे कहता है कि अगर तुम हमेशा आगे रहोगी स्टडीज़ में तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे अपनी मर्ज़ी से और तुम्हारे वो फ्रेंड्स बन जाएंगे। सो इसलिए वर्क हार्ड एंड प्लीज़ लर्न। सो फिर कहती है कि द वर्ड दैट अन्ना स्पोक टू मी दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट as Anna had urged. I stood first in my class, and because of that many people became my friends. Frenzy is like pagalpan, panic, fully motivated to make full efforts. दिन रात मेहनत करने वाला जो टाइम होता है एक इंडिविजुअल का, उसको हम फ्रेंजी बोल सकते हैं। अर्ज्ड मीन्स स्ट्रांगली एडवाइज्ड। तो कहती है कि मेरे भाई ने जो मेरे को एडवाइस किया उसका मेरे पे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हुआ, असर हुआ। आई स्टडीड वेरी हार्ड विद ऑल माई अटेंशन एंड आई वॉज ऑलमोस्ट फुली डिवोटेड टू माई स्टडीज़। एज पर द स्ट्रॉन्ग एडवाइस ऑफ अन्ना आई tried and I secured first rank in my class, and because of that many people became her friends. So that's all about memories of childhood. We discussed about memories of childhood part 1, which was the cutting of my long hair, and part 2 narrated by Bama, we too are human beings. So both these parts, both these stories of different individuals are very important. So try to learn
try to listen and to get each and every detail of this lesson from these videos. And if you have any query like related with this text or related with this lesson, you can drop your comment, you can put your message in the comment box. So guys, thank you all for being patient. Thank you so much.